ہم 10 بھائی جو کہ کنانی ہیں اپنے غلام یوسف کو مالک ابن زار کے ہاتھوں بعوض 18 درہم فروخت کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ یوسف کو کسی دور دراز سرزمین پر لے جائیں تاکہ یہ پھر کبھی کنان کا رخ نہ کر سکے۔ لاوی اور شمون نے سند پر مہر لگائی ہے۔ غالباً یہ شمون کی تحریر ہے۔ آپ میں سے شمون کون ہے؟ میں ہوں۔ وہ ہمارے گھر میں ایک کنیز ہوا کرتی تھی جس کا ایک گستاخ اور نافرمان بیٹا تھا۔ ناچار وہ لڑکا مالک نامی ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ البتہ صرف اس لیے تھی کہ ہم اس کی شرارتوں سے نجات پا لیں۔ یہ سند اسی زمانے سے متعلق ہے، آپ یقین کیجئے۔ بنیامین، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں عالی جناب، ہمارا کبھی کوئی غلام اس نام و نشان کا نہیں تھا۔ اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ سند آپ کے اور بانو زلیخا کے پاس کیا کر رہی ہے؟ یہ سند میں نے یوسف سے لی تھی، وہی یوسف جسے کارواں والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تمام باتوں کا علم ہے۔ ہمارے لیے یہ ناقابل یقین ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ہم نے اس جام سے سنا ہے۔ اسے تو پہچانتے ہیں نا آپ؟ یہ وہی طلائی جام ہے جو بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا تھا۔ یہ جام مجھ سے کلام کرتا ہے۔ یہ جام آپ سے کلام کرتا ہے؟ اس نے اپنی آواز سے تمام حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں۔ آپ وہ تمام حقائق سننا پسند کریں گے؟ جام کہتا ہے یوسف کو اس کے بھائیوں نے بہت زد و کوب کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا۔ جام بتاتا ہے کہ وہ اس کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن لاوی مانے ہو گیا اور انہوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا اور طے یہ پایا کہ اپنے بابا سے جا کر کہہ دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ میں گواہ تھا کہ آپ لوگ میرے بھائی کا خون آلود کرتا بابا کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئی۔ یہ سب آپ کو بنیامین نے بتایا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ۔ آپ کا یہ جام بالکل حقیقت بیان کر رہا ہے علی جناب۔ یہ ہماری رسوائی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اس حقیقت بتانے دیجیے، ہم سن رہے ہیں علی جناب۔ آپ نے اپنے بھائی یوسف کو اس کاروا والوں کے ہاتھوں جس نے اسے کنویں سے باہر نکالا تھا صرف 18 درہم کے عوض فروخت کر دیا۔ آپ نے اپنے ہی بھائی کو غلامی میں دے دیا، اس بات سے بے خبر کہ وہ تو خود اپنی مرضی سے جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مستقبل میں اسے ایک عظیم ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ کارواں والوں نے یوسف کو رسیوں سے باندھ کر غلاموں کی صورت یہاں مصر لے آئے اور اسے بردہ فروشوں کے بازار میں لا کر بیچ ڈالا۔ میں مالک ہوں، وہی مالک جس نے یوسف کو کنویں سے نکالا تھا، خریدار یوسف۔ کچھ یاد آیا تمہیں؟
अगर इजाजत हो तो इस जाम की बकिया कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। पुतीफार अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीद कर उसे अपनी हमसर जुलेखा को हदियतन पेश कर दिया। यूसुफ आपको हदियतन पेश कर दिया था? हाँ, मैं बरसों यूसुफ की मालिक को मुख्तार रही हूँ। वो मेरे ही कसर में परवान चढ़ा। मैंने भी आप लोगों की तरह उस पर कई सितम ढाए, उसके खिलाफ साजिशें की, उसे जिंदान में डलवा दिया। खुदावंद मुझे माफ करे। और यूं यूसुफ 12 साल बेगुनाह जिंदान में रहा। सालों जिंदान की सख्तियां व सूबतें सही, पत्थर की कानों की सख्त तरीन मुशक्कतें झेली। फिर यूं हुआ कि जनाब अखनातून ने एक ऐसा ख्वाब देखा कि तमाम मुआब्बिरान मिस्र जिसकी ताबीर पेश करने से आजिज रह गए। मैं जानता था कि यूसुफ ताबीर पेश करने में माहिर है। जिंदान में मेरे ख्वाब की बड़ी बेहतरीन ताबीर पेश की थी, लिहाजा मैंने यूसुफ से फरमा रवा का ख्वाब बयान किया और उसने नहायत दकीक और मुनासिब ताबीर पेश की। और फरमा रवा के ख्वाब की ताबीर पेश करना यूसुफ के लिए कैसे निजात का सबब बना और मर्दम मिस्र को कहत से निजात दिलाने का जरिया भी। और इस वक्त यूसुफ नबी मेरे हमसर और ये दोनों मनस्सा और इफ्राहिम हमारे बच्चे हैं। और वो यूसुफ इस वक्त अजीज मिस्र है। ये यूसुफ है? यूसुफ हमारा भाई? तुम यूसुफ हो? हमारा भाई? क्या वाकई तुम यूसुफ हो? अजीज मिस्र, हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हमारा भाई यूसुफ? यूसुफ? हाँ, मैं यूसुफ ही हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। वही जिसे हम नहीं चाहते थे कि वो बाबा का जानशीन बने, वही जिसने अबाए रिसालत और कमरबंद नबूवत बाबा से विरसे में पाया। हाँ, मैं आपका वही भाई हूँ। खुदा ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। सब्र करने और तकवा इख्तियार करने वालों के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता। देख रहे हो हम सब नादिम और शर्मसार खड़े हैं। अब तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगे? एक भाई को अपने भाई के साथ सिवाय दरगुजर के और क्या करना चाहिए? हम भी तो भाई थे, तो फिर हमने क्यों तुम पर इतने सितम ढाए यूसुफ? मगर मैंने तो माजी को भुला दिया है। वहीं कुएं ही में मैंने आप लोगों को बख्श दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं बख्शा जाऊं। हमने तुम्हारे हक में बड़ा सितम किया है यूसुफ, लेकिन तुम सितम मत करो। तुम्हारा यूं बख्श देना मुझे मार डालेगा। तुम्हारा ये बख्शना ही तो सबसे बड़ी सजा होगी जो तुम हमें दोगे। तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता यूसुफ, हमें कोई सजा दो। मुझे खुद से नफरत हो रही है, मुझे खुद से नफरत हो रही है यूसुफ। शायद ये सजा मेरे एहसास गुनाह को कुछ कम कर दे। तुम्हारा यूं बख्श देना मेरे लिए हर सजा से ज्यादा सख्त है यूसुफ। क्या आप वाकई सजा चाहते हैं लावी? अगर तुमने सजा ना दी, मैं खुद को हलाक कर डालूंगा। ठीक है, अब जबकि आप सजा चाहते ही हैं तो आगे आइए। मुझे मारो यूसुफ, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे मारो।
मेरे दिल में अब कभी भी भाइयों से न कोई कीना था और ना है। खुदा की कसम मेरे लिए इससे ज्यादा सख्त सजा और हो भी क्या सकती है। अगर इन तमाम गुनाहों के बावजूद मुझे सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है कि मैं खुद ही अपनी जान लेने का मुर्तकिब ना हो जाऊं। मैं खुद को मार डालूंगा। यूसुफ, खुदा ना कोई सजा दो, खुदा के लिए यूसुफ मुझे कोई सजा दो। मैं देखता रहा मेरे भाइयों ने तुम पर क्या क्या सितम ढाए, लेकिन खामोश तमाशाई बना रहा। मैं सालों खामोश रहा और असल हकीकत बाबा से छुपाई रखी। जल्लाद से कहो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, कहो कि मुझे ताजिया ने मार मार के इस बेहसियत दरिंदगी को मेरे वजूद से निकाल बाहर कर दे, वरना यह एहसास गुनाह मुझे मार डालेगा, यह एहसास निदामत मुझे हलाक कर डालेगा। खुद पर काबू रखिए लावी, खुद को संभालिए। उठिए उठिए। अब तक कई बार आप लोगों से मेरा आमना सामना हुआ। मैंने बारहा चाहा कि आप लोगों को अपने सीने से लगाकर तवील जुदाई के उन दर्दों का मदावा करूं, लेकिन न कर सका। यानी मुझे इजाजत न थी। मैं अपने पूरे वजूद से आप तमाम भाइयों को चाहता हूं और कब से इस दिन के इंतजार में पल पल गिन कर गुजार रहा हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे एहसास शर्मिंदगी होता है। खुदावंद मुझे हरगिज न बख्शे अगर मैं आप भाइयों की शर्मिंदगी का बायस बनूं। खुदावंद तू देख रहा है, सितम मैंने किया, गुनाह मैंने किया और शर्मिंदा यूसुफ है। क्या हम जैसे सितमगर लायक बख्शिश है? देख रहे हो यहूदा, हमने कितनी अजीब हस्ती को रंज पहुंचाया है। नेमी साहब, हमने सिर्फ तुम्हें ही रंज नहीं पहुंचाया है, जो दुख बाबा ने हमारे हाथों उठाए हैं वो इससे कहीं ज्यादा सख्त और तकलीफ दे है। उनकी तलाफी कैसे होगी? अगर उन्होंने हमें नहीं बख्शा तो हम कहां पर आलेंगे? बाबा भी आप लोगों को बख्श देंगे, बशर्ते कि तौबा कर लें। ये जुदाई अब खत्म क्यों नहीं हो जाती? आखिर ये जुर्म फिराक कितना तवील क्यों हो गया है? मेरा ख्याल है कि हमारे जद हजरत इब्राहिम की कहानी दोबारा दोहराई गई है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा ने अब जाकर अपने इस्माइल की कुर्बानी दी है। यही वजह है कि अब खुदावंद ने इरादा किया है कि उनका इस्माइल अब उन्हें लौटा दे। अली जनाब, आप में से कोई ये पैराहन बाबा तक पहुंचा सकता है? मैं। अगर हम बाबा की बिनाई उन्हें वापस लौटाने में मदद करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह आप अपने गुनाहों की कुछ तलाफी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो अलबत्ता ऐसा होना नामुमकिन है। इरादा खुदावंदी हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उठिए। ये वो पैराहन है जो हमारे जद इब्राहिम से इसहाक नबी और उनसे हमारे बाबा और फिर मुझ तक पहुंचा है। लावी,
آپ یہ پیراہن بابا تک پہنچا دیجئے اور اسے ان کی آنکھوں سے مس کیجیے گا. خدا نے چاہا تو بابا کی بینائی لوٹ آئے گی. جائیے بابا کے پاس جائیے اور ان سے کہیے گا کہ وہ تمام بنی اسرائیل اور ان کے اہل و عیال کے ہمراہ ماں ساز و سامان کے مصر تشریف لے آئیں. میری فرما روائے مصر سے اس حوالے سے بات ہو چکی ہے. سو اب میرا ارادہ ہے کہ منفیس کے نزدیک ایک زرخیز خطے پر آپ لوگوں کی رہائش کا بندوبست کیا جائے. کورشن یہاں نزدیک ہی میں ایک بہترین خطہ ہے. میرا ارادہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے وہاں ایک نیا شہر تعمیر کرواؤں. خدا نگہدار. مالک دعا کرنا. میرے بھائی کے لیے خدا سامان خدا سفر سلامت تیار رکھے. کروائیے. خدا حافظ بھائی. خدا نگہدار. با امید دیدار. میرے بابا کی آنکھوں کی شفا اس پیرہن میں پوشیدہ ہے. جلدی کریں، جلد از جلد اسے یعقوب نبی تک پہنچا دیں. خدا نگہدار. بامید دیدار. ہاں میرے بچوں، دنیا صرف ایک کنان تک ہی محدود نہیں ہے. دنیا میں لا تعداد شہر ہیں اور بے شمار حکمران اس دنیا میں حکومت کرتے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا کہ جب پورے عالم میں ایک ہی حاکم اور ایک ہی حکومت ہوگی، اور وہ حاکم بلا شبہ دنیا کا صالح ترین انسان ہوگا اور اس کی حکومت دنیا کی بہترین حکومت ہوگی. وہ حاکم کون ہوگا دادا جان؟ تم شمعون کے بیٹے جرشون ہو نا؟ جی دادا جان. یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ خدا کے صالحین بندوں میں سے ایک ہوں گے، اور وہ آخری پیغمبر کی بعثت کے بعد اپنی حکومت کو تشکیل دیں گے. آخری پیغمبر کو آپ جانتے ہیں دادا جان؟ اچھا، تم اشپیل، تم بنیامین کے بیٹے ہو نا؟ ہاں، میں انہیں جانتا ہوں، اور دیگر پیغمبر بھی انہیں جانتے ہیں. سب انہی کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. ان کا نام احمد ہے. احمد؟ ہاں، احمد. وہ میرے چچا اسماعیل کی ذریت میں سے ہیں. کیسی دلاویز خوشبو ہے. یہ خوشبو اس میں احمد زبان پر لانے کی وجہ سے ہے. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا کہا آپ نے بابا؟ اگر مجھے دیوانہ نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بس کیجئے بابا، یوسف یہاں کہاں؟ آپ کو وہم ہوا ہے، ہمیں تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے. یوسف کو مرے ہوئے ایک مدت ہو گئی اور آپ کو اب اس کی خوشبو آ رہی ہے. وہ مرا نہیں ہے. میرا یوسف مرا نہیں ہے. میں نے اپنے یوسف کو کبھی مردہ نہیں سمجھا. میرا یوسف زندہ ہے. آج کا یہ دن یاد رکھنا. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سنا تم لوگوں نے؟ ہمیں اپنے شوہروں اور بھوکے بچوں کی پڑی ہے اور انہیں اپنے یوسف کی فکر لگی ہوئی ہے.
बखैर और आफियत जाइए। खुदा हाफिज और नासिर। उम्मीद है कि अगली मर्तबा याकूब नबी के हमरा आपसे मुलाकात हो। हम आपकी मोहब्बत के शुक्रगुजार हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुउम्मीद दीदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। कहत को आए 5 साल हो गए हैं। अगर अब भी बारिश न बरसी तो तमाम अहले मिस्र हलाक हो जाएंगे। नील खुश्क हो चुका है, मजीद अगले 2 साल तक बारिश नहीं बरसेगी। ये यूसुफ की पेशन गोई है। न जाने क्यों इतने दिनों से नबी खुदा यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई सवार किनान की जानिब आ रहा है, कोई आ रहा है। एक शख्स किनान की सिमत आ रहा है, एक शख्स किनान की सिमत आता दिखाई दे रहा है। ये मेरा भाई लावी है। लावी? लावी आ गया। लावी है? लेकिन वो अकेला क्यों है? लावी आ गया? सलाम बाबा। सलाम बेटा। खुश आमदीद। सिपास गुजार। सलाम बाबा। लावी, ये तुम हो? किस कदर परेशान था मैं। मुझे खुशी है कि आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मैं भी आपके लिए बहुत फिक्रमंद था। यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ को साथ लेकर आए हो? खुद पर काबू रखिए, खुद पर काबू रखिए। हाँ भी और नहीं भी, मैं यूसुफ की एक निशानी लेकर आया हूँ। निशानी? कैसी निशानी? मैं आपके लिए पैराहन यूसुफ लेकर आया हूँ बाबा। वही पैराहन जो खिलता हुआ नकरई रंग का है? हाँ, वही है। मैं इसे पहचानती हूँ। ये अबाए रिसालत है।
इसका एहतराम करो। ये पैराहन मेरे जद इब्राहिम से मेरे बाबा इसहाक और उनसे मुझ तक पहुंचा है। इसे तो यूसुफ के पास होना चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला? यूसुफ ने खुद ये पैरहन मुझे दिया बाबा। यूसुफ, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने बेटा? आया मैंने दुरुस्त सुना है? यूसुफ को क्या हुआ है? यूसुफ को कुछ नहीं हुआ बाबा, हमें यूसुफ मिल गया है। हमारा भाई यूसुफ ही अजीज मिस्र है। अजीज मिस्र ही हमारा गुमशुदा यूसुफ है। हाँ बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? बाबा परेशान मत हो, क्या हो गया बाबा? या नबी अल्लाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो खुद कहाँ है? तुम लोगों के यूं खाली पैराहन ले आने से कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। एक बार इससे पहले भी तुम लोग यूसुफ का खून आलूद कुर्ता लेकर आए थे, लेकिन यूसुफ नहीं आया था। इस बार भी पैराहन यूसुफ तो लाए हो, लेकिन उसे फिर भी नहीं लाए। मैं यूसुफ को अपने हमरा नहीं ला सकता था बाबा, क्योंकि वो अब अजीज मिस्र है। मैंने ताकीद की थी कि इस पैराहन को खुद से जुदा मत करना, तो फिर उसने ये तुम्हें क्यों दे दिया? उसने ये आपकी वजह से खुद से जुदा किया है बाबा। उसने कहा है कि ये पैरहन बाबा को शिफा बख्शेगा और ये आपकी आंखों को मुनव्वर कर देगा बाबा। ये पैरहन शिफा बख्श है। मैंने नहीं कहा था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। अगर ऐसा ना होता तो उसका पैरहन मेरी आंखों के लिए शिफा बख्श ना होता। खुदाया परवरदिगारा, इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है। इश्क क्या क्या ना करिश्मे दिखाता है। मुबारक हो याकूब। 10 रोज से मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। सब लोग ही मुझे दीवाना कह रहे थे। ये आलम इश्क से नावाकिफ है। पैराहन यूसुफ 10 रोज पहले मिस्र से आपकी जानिब भेजा गया था। मैं 10 रोज से यूसुफ की खुशबू को महसूस कर रहा था। बरसों पहले भी चाहे यूसुफ से आपका गुजर हुआ था, तब बुए यूसुफ आप महसूस नहीं कर पाए थे। तो अब इतने फासले से कैसे महसूस कर ली? विलायत के मुकाम और मर्तबे का इदराक जितना आज आपको हुआ है, उतना उस दिन नहीं था। बस तो मैं सही समझा था। यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है। हाँ, आपने बरसों एक वली खुदा की फिराक में गुजारे हैं। आपकी उसी मुसलसल गिरियाज़ारी और इंतजार ने आपको पहले से ज्यादा बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया है। इश्क़ विलायत हर एक को चश्मे बीना अता करता है। आपकी आंखें सफेद नहीं रही। मैं तुम लोगों को देख सकता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है बाबा। हाँ मेरे बेटे, पैराहन यूसुफ और इनायत परवरदिगार से मुझे तुम्हारा भी नाई मिल गई है। जिस पैराहन ने इब्राहिम को आतिश नमरूद से निजात दिलाई हो, क्या वो मेरी आंखों को शिफा नहीं बख्शेगा? ये तुम हो और तुम्हारे दीगर भाई कहाँ हैं? परेशान मत होइए, वो भी आते ही होंगे बाबा। और यूसुफ, क्या यूसुफ भी उनके साथ है? नहीं बाबा, हम सब उससे मिलने जाएंगे, अपने तमाम अजीज और अकारिब के हमरा। परवरदिगारा, सिपास गुजार हूँ।
میں نے کہا تھا نا بابا یہاں پر نہیں ہوں گے. یہ حجرہ بیت الحزن ہے اور بابا اب محزون نہیں رہے. ہاں یہ تو ہے. یقیناً بابا کی بینائی لوٹ آئی ہے, تبھی وہ برسوں بعد گھر گئے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. چونکہ میں جانتا تھا کہ آج تم لوگ واپس آؤ گے سو یہیں بیٹھا تھا. سلام بابا, آپ یہاں ہیں. سلام بابا کی جان. میں بہت خوش ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. بابا بابا آپ کی بینائی لوٹ آئی. آپ دیکھ سکتے ہیں بابا. یہ پیرہان یوسف کا معجزہ ہے میرے بچے. سلام بابا. درود بر نبی خدا. بابا دیکھ سکتے ہیں. ارے دیکھو بابا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. درود بر نبی خدا. تم پر بھی درود ہو. آپ خوش نہیں ہیں؟ کیوں نہیں, لیکن ماضی کی تلخ یادیں مجھے چین نہیں لینے دیتی. بابا ناراض ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے. اب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے بیٹے کس عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں.